Today I want to talk about the importance of lyrics and specifically the very special format we have in Indian cinema where the songs of the movie take the story of a film ahead. Honestly, गाने हमारी फिल्मों का बहुत ही important हिस्सा है. I mean, this is what differentiates us from the world cinema. थोड़ा और deep जाते हैं. World cinema में there is background music. हमारी फिल्मों में background score तो होता ही है, but songs भी होते हैं with lyrics. नहीं, मैं नहीं मानता. अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं, lyrics are something that are sprinkled at every aspect of the filmmaking. The story, the screenplay, the theme of the film, what the film wants to say to you. Here are some examples. Number 1, helping the screenplay be less boring. ओम शांति ओम तो देखी होगी ना, नहीं देखी तो वीडियो पॉज करो, जाके देख के आओ 3 घंटे बाद. ओके. ओम कपूर provokes Mukesh Mehra by retelling the story of what he did to Shanti Priya 30 years ago by a song. It is so entertaining to see it as a song with his reaction to it. अब वर्ल्ड सिनेमा में यही चीज दिखाने के लिए या तो उसको एक प्ले दिखाएंगे या फिर उसकी डायरी पढ़ेंगे, which is quite boring if you compare it to the song दास्ताने ओम शांति ओम. Also boring for the audiences जिन्होंने ये पिछले 2 घंटे देखे और उनको एक्चुअली पता है कि क्या हुआ है, तो मैं ये दोबारा क्यों देखूं unless it's done in a very entertaining way. लिरिक्स के थ्रू ओम कपूर सिर्फ यही नहीं बताता है कि क्या हुआ है, वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि उसकी असली आइडेंटिटी क्या है थ्रू these lines. दास्ता है ये कि जो पहचानता है खूनी को वो नौजवान है लौट के आया. These lyrics revealing his identity while the lighting reveals his face to Mukesh Mehra. This is cinema. Number 2, expressing what the character feels. Honestly, if you're ever confused by a movie written or directed by Imtiaz Ali, just go through the lyrics of the movie, जो कि most likely इरशाद कामिल जी ने लिखे होंगे, and you will understand most of the movie. See, when it comes to lyrics telling what the character is going through, कुछ direct गाने भी हैं जैसे हीर तो बड़ी sad है. Decoding this song would be decoding a sad emoji sent by a friend. I think my friend would be sad. Though the example that I want to use is from a movie that he wrote, लैला मजनू. The song आहिस्ता आहिस्ता comes at a point when the protagonist is tired कि भाई अब और क्या करूं so that I get together with the love of my life, and there are hurdles back to back. First her parents, then a misunderstanding, then her husband, but उसका husband भी मर जाता है and उसको लगता है कि शायद अब हमारा मिलन हो जाएगा, but even his death becomes an obstacle. At this point the protagonist is like भाई और मैं क्या ही कर सकता हूँ. Although the song starts from a female POV, when the male part comes the lyrics go like तुम मेरे हो रहे या हो गए या है फासला, पूछे दिल तो कहूँ मैं क्या भला, दिल सवालों से ही ना दे रुला. So this is how lyrics in Hindi movies describe what a character is going through. भाई धूम में तो अली का जो सिम्प कैरेक्टर है, it is established by the song दिलबरा. Remember the lyrics? तुझसे दिल लगाऊंगा मैं, फैमिली बनाऊंगा मैं, यही तो इरादा है मेरा. Okay, third one is a very interesting one, foreshadowing. देखो स्क्रिप्ट राइटिंग में foreshadowing ना एक टूल की तरह यूज होता है to give a hint of what is going to happen later in the script. Again, there are some examples of foreshadowing which are too direct like this. हाँ, और तू उसे देखेगी ना तो 20 माले से छलांग मार देगी. मैं तो छलांग मारने के लिए तैयार हूँ. But foreshadowing in songs is what makes it very delicious and interesting. For example, कोई मिल गया में जादू के आने से बहुत पहले गाना आता है इन पंछियों, जिसकी एक लाइन रोहित ये गाता है. धरती पे हम चलते हैं पर छू लेंगे आसमां. हिंटिंग की मूवी में आगे जाके कुछ ऐसा होने वाला है विच इज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, कुछ आसमान से लेने देने पर. जादू को बुलाते टाइम जो म्यूजिक प्ले होता है वो इन्हीं लाइंस का म्यूजिक है. फोर, समराइजिंग द फिल्म. तमाशा का एक गाना है मटर गश्ती जिसकी मैं ये लाइनें पढ़ना चाहूंगा. दिल का भंवर बोले सुन साथिया, छुपना दुपट्टे में तू ओ छलिया. Which is exactly what the main character of the film Ved is going through. यहाँ पे दुपट्टे का मतलब है वेद की वो फेक आइडेंटिटी जिसके पीछे वो छुपता रहता है, even though he is a storyteller by nature. This was an observation by a friend actually, and I would like to give credits. His name is प्रखर खरे. I remember मैंने ये 2015 में Facebook पे पढ़ा था और आज तक मेरे दिमाग में है. अभी I know कुछ लोग बोलेंगे भाई इतना तो इम्तियाज अली ने भी नहीं सोचा होगा. I agree, इम्तियाज अली ने नहीं सोचा होगा, but इरशाद कामिल the lyricist of the song उन्होंने जरूर सोचा होगा. 5वां पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सर्विंग एज अ ब्रेक फ्रॉम अ बैड फिल्म. देखो हॉलीवुड की तरह बॉलीवुड की फिल्में भी सारी अच्छी नहीं होती, बट इफ यू कंपेयर देयर आर मोर बैड मूवीज विद गुड सॉन्ग्स देन
गुड मूवीज विद बैड सॉन्ग। आई नो यूजुअली हिंदी गानों को क्रिटिसिज्म मिलता है फॉर ब्रेकिंग द फ्लो ऑफ अ फिल्म, स्पेशली जब वो एक थ्रिलर होती है और खत्म होने वाली होती है और तुम्हें लगता है अब पता चलेगा सस्पेंस क्या है, एंड द प्ले। ऑब्वियसली यू आर थ्रोन ऑफ बाय द सॉन्ग, बट इमेजिन गोइंग टू अ थिएटर एंड द मूवी टर्न्स आउट टू बी झूम बराबर झूम। एटलीस्ट जब उस बहुत बुरी फिल्म में बहुत अच्छे गाने आएंगे तुम 2 पल के लिए झूम तो लोगे, पन इंटेंडेड। जब हैरी मेट सेजल के ड्राई स्क्रीन प्ले में जब 4-5 मिनट के लिए हवाएं चलेंगी थोड़ी राहत तो फील होगी ना। आई विश राहत फतेह अली खान ने ये गाना गाया होता ताकि मैं एक ही लाइन में 2 पन मार पाता। माना दबंग 2 दबंग 1 जितनी अच्छी नहीं है, बट उसमें भी जब तुम दगाबाजरे सुनते हो तो 2 पल के लिए तो राहत फील होती है। Yes, I did it, माँ। Also लास्ट वीक मैं एक इवेंट पे गया जहाँ से मुझे ये वीडियो बनाने का आइडिया आया। उस इवेंट में जावेद अख्तर साहब अल्फा मेल, उन्होंने वहां बैठ के अपने गानों की बैक स्टोरी बताई, प्रोसेस बताया कि ये गाने उन्होंने कैसे लिखे हैं, एंड दे वर क्वाइट फैसिनेटिंग। करूं दिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बहार। 14 को तेरा संदेशा आया, 15 को आऊंगा ये कहलाया, 15 को आया मैं 16 को तू तड़पा के मुझको तूने क्या पाया। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि कैसे अच्छा म्यूजिक इंस्पायर करता है एक लिरिसिस्ट को टू राइट उतना ही अच्छा लिरिक्स। फॉर एग्जांपल कल हो ना हो टाइटल सॉन्ग, और मैंने कहा कि भाई सुनाइए क्या ट्यून है, तो मुझे ट्यून उन्होंने सुनाई, इसमें कोई वर्ड नहीं थे। मैंने कहा ये मैं अभी नहीं लिखूंगा, मुझे कोई दूसरी ट्यून दो, ये मैं बाद में लिखूंगा। बट ऑनेस्टली कुछ ऐसे गाने भी होते हैं जिनके लिरिक्स बहुत ही वाहियात होते हैं, बट क्योंकि म्यूजिक अच्छा है तो दे स्टे विद यू। फॉर एग्जाम्पल तेरी शर्ट दा मैं ता बटन सोनी बालों का तेरे में है क्लिप हो गया। कोई ये स्लैम पोएट्री में बोले तो उसको जूते फेंक। बट आई हैव एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू। कोई ऐसा गाना जिसका म्यूजिक ठीक ठाक हो बट उसके लिरिक्स की वजह से आपको वो गाना याद रहता हो? टेल अस इन द कमेंट्स। अस क्या, मैं अकेला हूं? टेल मी इन द कमेंट्स। देखो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के साथ साथ ना बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। एंड यू कैन सपोर्ट मी ऑन बाय मी अ कॉफी वेयर आई कैन एक्चुअली ड्रिंक एक गरम, ताकि मैं एक गरम चाय गरम। यू कैन ऑल्सो सपोर्ट मी ऑन बाय मी ऑन एक गरम कॉफी की प्याली पी सको। वन टेक आर्टिस्ट नहीं हूं मैं। पूछे दिल तो कहूं मैं क्या भला, दिल सवालों से ही ना दे